continue to pray for them. Standing in the grace and true grace of God, I want to read a small, simplest, easiest portion to meditate this noon time. परमेश्वर के अनुग्रह के बीच में खड़े होते हुए आज दोपहर के समय मैं आपके सामने एक बहुत छोटा, एक साधारण सा वचन पढ़ना चाहता हूँ. Very easy to memorize, very easy to understand, very easy to grasp. So you are requested to attend, not to going out at the time of sermon. प्रचार के समय आप यहाँ वहाँ ना घूमें, आपसे निवेदन है, क्योंकि जो वचन हम ध्यान करने वाले हैं ये बहुत ही आसानी से समझ आने वाला और बहुत ही आसानी से याद करने के योग्य है. Shall we open our Holy Bible to the Gospel according to Mark chapter 9 verse 22 last line. आज के ध्यान के लिए हाय हमारे धर्मशास्त्र को मरकुस के सुसमाचार 9 अध्याय का 22 वचन उसके आखिरी भाग को पढ़ेंगे. Mark chapter 9 verse 22 last line. मरकुस 9 अध्याय का 22 वचन उसका आखिरी भाग. परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर. Have compassion on us and help us. हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर. Have compassion on us and help us. हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर. This is a small request or a prayer of a unsaved person unto Jesus while that person was going through much difficulties. बहुत कष्ट के मार्ग में से जाने वाला एक उद्धार ना पाया व्यक्ति परमेश्वर को देख यीशु मसीह को देख इन वचनों को कहता है. This noon time also we might be counted as any category: sinner, backslider, servant of God, saint, believer, non-believer. All could pray telling this unto Jesus Christ. आज दोपहर के समय में भी हम किसी भी श्रेणी में होंगे तो भी हम इस रीति का प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो. आज दोपहर के समय वो इस रीति का प्रार्थना कर सकता है. Though this is a small request or prayer that has done a great thing in a person's or families or even in the ministry's side. यद्यपि ये प्रार्थना का वचन बहुत छोटा है, फिर भी इस प्रार्थना के द्वारा एक मनुष्य के जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में और चाहे सेवा के भाग में भी इसने बड़े कामों को किया है. On the other side, we might be a saint or a holy person or a person waiting for the coming of the Lord. We should have such a prayer because we need the compassion and help of our Jesus Christ, all the aspects of our life and ministry. हम कोई भी मनुष्य हो सकते हैं, हम एक संत हो सकते हैं, हम एक विश्वासी हो सकते हैं और इस रीति का हम प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारी सेवा के बीच में और हर एक भागों के बीच में इस प्रार्थना के द्वारा हमें आशीष करेगा और हमें मदद करेगा. Child of God, with what problem, trouble, trial, temptation, sickness or weakness or loss of money or joblessness or anything, if you have anything in your life, let's start to pray within your heart. Lord, this day show compassion and help towards us. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपकी समस्या कुछ भी हो सकती है, आपके जीवन में कोई भी प्रकार की परेशानी हो सकती है. यदि आप कई प्रकार के कष्टों में से, परीक्षाओं में से जाते भी होंगे, आप अपने मन में ये छोटा सा प्रार्थना आप करते रहिए. आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा. Believe the word of God. You might have gone many places. You might have told your problem unto many for prayer or for help or for compassion or for solution, but you might have failed in that area. Don't worry, this no time. Lord is here. Tell only one word: Lord, show compassion and help towards me. आप बहुत सी जगहों पे गए होंगे, आप बहुत से लोगों को अपनी समस्याओं को बताए होंगे, उनके द्वारा आपने कई उत्तर को पाने के लिए, हल को पाने के लिए, समाधान को पाने के लिए कोशिश किए होंगे, लेकिन आप विफल हुए होंगे. लेकिन आज ये दोपहर के समय आप परमेश्वर के इस वचनों के ऊपर विश्वास करते हुए परमेश्वर से मदद को मांगे. निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा. Your problem, your sickness, your trouble, your trial might have many years you are suffering with that have a long term. Don't worry. By this small prayer, if you believe and do, you can receive the solution, or you can go from here
with a great joy because God is going to show you compassion and help. आपकी समस्या बहुत बड़ी होगी, आपकी बीमारी बहुत बड़ी होगी, आपके कष्ट बहुत बड़े होंगे और बहुत से सालों से, बहुत लंबे समय से चलते आ रहे होंगे। लेकिन आज दोपहर के समय यदि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर से मदद को मांगेंगे तो वो आपके ऊपर तरस खाएगा और आपकी सहायता करेगा। A boy was brought by his father having devil possessed, and he had already taken many places for healing, at last to the disciples, but there was no solution. एक पिता अपने बालक को जो दुष्ट आत्मा के द्वारा जकड़ा गया था बहुत सी जगहों पे लेके गया, छुटकारे के लिए बहुत से लोगों के पास गया, लेकिन वो छुटकारा ना प्राप्त कर सका। अंत में वो उसे चेलों के पास लेके आया और वहां भी उसे कोई सहायता ना मिली। When the compassionate and helping mentality Jesus knew about that, he said in 19th verse, bring him unto me. तरस खाने वाले परमेश्वर और जब मदद करने वाले, मन रखने वाले यीशु मसीह को ये बात जाननी पड़ी तो उसने उस पिता से कहा कि अपने बेटे को मेरे निकट लेके आओ। Anything which could not be solved by anybody in this world, by you also, don't worry. Jesus says unto you, this no time, bring him unto me, or bring that matter unto me. इस संसार के बीच में कोई भी आपकी समस्या का जो समाधान नहीं कर पाते, आज दोपहर के समय यीशु मसीह आपसे कहता है उन सारी बातों को मेरे पास ले आओ। Any sin, any sickness, or any such problem, child of God, shall we all bring that unto Jesus, who is waiting for you and me with great compassion and helping mind. कोई भी पाप, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या आज जो हमारे बीच में है, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आइए उन सारी बातों को हम यीशु मसीह के निकट लेके आए जो हमारे ऊपर हमारा दया करेगा, तरस खाएगा और हमारी सहायता करेगा। Yes, I am right now itself bringing that problem, that sorrowful problem which is giving me trouble for a long time. Now I bring that unto Christ. How many of you say so? Lift up your right hand and shout and hallelujah. जितने लोग इस बात को कहते हैं कि हाँ मैं अभी मेरी समस्या को, मेरी बीमारी को, मेरे कष्ट को जिसके द्वारा मैं इतने समय से चलते आ रहा हूँ, उन सारी बातों को मैं यीशु मसीह के निकट लेके आ रहा हूँ, वो लोग अपने हाथों को खड़ा करते हुए एक हालेलुया पुकारे। हालेलुया, Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Don't worry because you are a backslider or sinner or a person who comes this day, first day unto this church or anything. Because this is a common prayer. Jesus is common to the whole world. He is here to show you compassion and help. You cannot receive this both in anywhere in this world. आप एक पापी हो सकते हैं, आप एक पीछे हटे हुए मनुष्य हो सकते हैं, आप एक नए मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन चिंता करने की बात नहीं। यीशु सबके लिए है, यीशु सबके ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं से आपको छुटकारा देगा। ऐसा एक साधारण प्रार्थना सबके लिए है। After placing that matter before Christ, what was his prayer? Have compassion on us and help us. यीशु मसीह के पास आने के बाद उस मनुष्य ने इस रीति से प्रार्थना किया कि आप हम पे तरस खाते हुए हमारी सहायता करें। Compassion means suffering with one another. तरस खाने का अर्थ है कि एक दूसरों के साथ कष्ट उठाना। Or awareness of others' sufferings. या तो दूसरों लोगों के कष्टों के बारे में ज्ञान प्राप्त होना या उसके बारे में जानना। If this brother is going through sufferings, knowing that and suffering with him is known as compassion. मान लीजिए एक भाई अगर कष्ट में से होके जा रहा है तो उसके कष्टों को समझते हुए उसके साथ मिलके कष्ट उठाना, वो है किसी के ऊपर तरस खाने का अर्थ। What your problem might be a long-term problem, or that is very hard. Christ is here to show compassion. He wants to involve. He wants to take part. He wants to solve in that problem or suffering or difficulties or trouble which you are bearing or experiencing for a long time.
आपकी समस्या बहुत लंबे समय से चलती आ रही होगी, लेकिन आज यीशु मसीह की उन सारी बातों को समझते हुए उसके बीच में, आपकी समस्याओं के बीच में, आपकी परेशानियों के बीच में, आपके कष्टों के बीच में आपके साथ भाग लेते हुए आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको सहायता करना चाहता है। Helping means सहायता करना का अर्थ है to assist a person to achieve something. किसी मनुष्य को किसी चीज को प्राप्त करने में मदद करना, Or to make easier unto a person's purpose. नहीं तो एक मनुष्य की योजना को उसके लिए और भी सहज कर देना, आसान कर देना। Now I am lifting up this watch. Now I am lifting up this watch. अभी मैं इस घड़ी को उठा रहा हूँ। This brother is seeing that I find difficult to lift up. He is also helping me to lift up and attain the position which I want to lift it up. और इस भाई ने देखा कि मुझे इस घड़ी को उठाने में कष्ट हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपने हाथ को बढ़ा के मुझे सहायता किया और जिस स्थान पे मैं इस घड़ी को चाहता हूँ उस स्थान पे उस घड़ी को लेके गए। That is help. यही है सहायता। You need compassion and help in every aspect or every work of your family life, personal life, spiritual life, future life, everything. आपको परमेश्वर की सहायता, आपको परमेश्वर की दया आपके जीवन के हर एक भागों के बीच में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके काम की जगह में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके भविष्य में, आपके हर एक विषय में आपको चाहिए। Passion and help coming from only our Jesus. In that compassion and help, all solutions, all your helpings, everything is hidden or included. वो दया, वो तरस खाना और वो सहायता केवल यीशु मसीह की ओर से आती है। जब कभी भी आपके जीवन में आपको उसकी दया और उसका सहायता चाहिए हो, केवल यीशु मसीह में आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। You might have come over here from a long distance. You may expect something from here from God. हो सकता है कि आप बहुत दूर से आए होंगे और परमेश्वर से कुछ सहायता को, उसकी दया को आप अपेक्षा करते होंगे। Beloved children of God, compassion of Christ, help of Christ, enough for you all the days of your life, even at the coming of the Lord and afterwards also. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर की दया, यीशु का तरस खाना और यीशु की सहायता आपके जीवन में हर एक दिन वो बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की आमद में भी वो तरस और वो दया और वो सहायता आपको ज़रूरी है और उसके बाद भी वो बहुत ज़रूरी है। While Christ was in this world, in some occasions he was moved with compassion, Bible says. यीशु मसीह संसार में रहने के समय में वचन इस रीति से कहता है कि यीशु ने लोगों के पर तरस खाया। And another explanation of this compassion is given clearly in Lamentation chapter 3 verse 22, that his compassion, we are not consumed because his compassion and his compassion faileth not, that is new every morning. அது காலைதோறும் புதியதா இருக்கிறது இல்லையா? उस दया का एक और अर्थ हम वचन में पढ़ते हैं, विलाप गीत 3 अध्याय का 22 वचन में पढ़ते हैं कि ये उसकी दया है कि हम नाश नहीं हुए। That is new every morning, that faileth not, because of that compassion we are not consumed so far. वो प्रतिबोर नई होती रहती है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है। If you are a sinner, अगर आप एक पापी हैं, if you are unable to come out of any particular sin, अगर आप किसी पाप में से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो tell that matter unto Christ. This time he is ready to show compassion and help, so that that sin will be forgiven and he will give the power so that you may not fail in that area in the coming 4 days. इस समय में उस पाप को, उस विषय को आप यीशु मसीह को पूरी रीति से बोल दे, वो आपके ऊपर दया करेगा, आपको सहायता करेगा और उस पाप में से निकलने के लिए आपको सहायता करेगा, ताकि आने वाले दिनों में आप उसमें विफल दोबारा ना हो पाए। Jesus asked that father that how many days you are suffering with this. यीशु मसीह ने उस पिता को पूछा कि आप कितने दिन से इस बात से कष्ट उठा रहे हैं। He replied, of a child, while he was a child, the sickness started. और उसने इस रीति से जवाब दिया कि जब से वो छोटा था तब से ये कष्ट उठा रहा है। From that day onwards, that spirit wanted to take him the water and fire to destroy him. उस दिन से ये दुष्ट आत्मा उसे कभी पानी में और कभी उसे आग में लेके नाश करना चाहती है।
Yes, that problem is giving sufferings to you and your family and your church and your relatives and many other people for a long time. That might be true. हाँ, ये सच हो सकता है कि वो समस्या आपको आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी कलीसियाओं को और आपके व्यक्तिगत जीवन को और आपके रिश्तेदारों को भी बहुत लंबे समय से कष्ट देती होगी। That may have a tendency of destroying you, destroying your spiritual life, destroying your holy life, destroying your prayer life, destroying your overcoming life, destroying your ministry, destroying the health of your body, and so on. आपके जीवन को नष्ट करने के लिए, आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करने के लिए, आपके जय जीवन को नष्ट करने के लिए, आपके प्रार्थना जीवन को नष्ट करने के लिए, आपके पारिवारिक जीवन को नष्ट करने के लिए इस समस्या के बीच में बड़ी सामत हो गई। You might have gone up to death also because of that in many times. बहुत समय इस समस्या के कारण आप मृत्यु के निकट भी गए होंगे। You might have asked questions unto God, Lord, why it is so to me or to my family or to my child only, Lord? बहुत बार इस समय इस बात के कारण आपने परमेश्वर से सवाल किए होंगे कि क्यों परमेश्वर ये समस्या मेरे परिवार के ऊपर, मेरे जीवन में और मेरे बच्चों के ऊपर है। Don't be sorrowful. This day, if you receive the compassion and help of Christ, this day is the day of the end of all such problem in your life, in your family, in your ministry, in your future. दुखित ना हो। आज अगर आप परमेश्वर की दया को प्राप्त करेंगे, यीशु की सहायता को प्राप्त करेंगे, तो आज के दिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा और आपकी सारी समस्याओं का अंत होगा। You might have gone through much difficulties like water or fire or something like that in your life many times. As David says, we have crossed fire and water in 66th Psalm 12th verse, but God helped you so far that you might not be destroyed, but now the delivering God is in our midst. भजन संहिता 66 का 12 वचन में जिस प्रकार दाऊद कहता है कि परमेश्वर तो हमें आग में से और पानी में से लेके गया, उसी प्रकार आप भी कई बार उस आग में से और उस पानी के बीच भी समस्याओं के बीच में जाते होंगे, लेकिन तरस खाने वाला यीशु आपके साथ रहते हुए अभी तक आपको नाश होने से बचाए रखा। Any problem, family problem, spiritual problem or physical problem or anything, Jesus wants to show right now compassion and help if you started to pray unto Him. आपके पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, आपके आत्मिक समस्याएं हो सकती हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, अगर आज इसी समय में आप प्रार्थना करना आरंभ करेंगे तो यीशु मसीह आपके ऊपर तरस खाते हुए आपकी सहायता करेगा। 1960 God called a person to ministry. 1960 में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को सेवा के लिए बुलाया। God called him telling this thing, you have to preach the compassion which proceed out of my cross. मेरे क्रूस से निकलने वाली उस दया को तुम लोगों को जाके प्रचार करो करके परमेश्वर ने ऐसा उस व्यक्ति को कहा। So in all the preachings of that famous preacher, though he preached about many other subjects, last he come unto the cross and he preached compassion revealed cross at the crucifixion. वो जो प्रसिद्ध प्रचारक है, किसी भी प्रकार का किसी भी विषय में प्रचार करने से भी आखिरी में वो उस क्रूस की दया के बारे में, उस क्रूस से निकलने वाले उस तरस के यीशु के तरस खाने के उस अनुभव के बारे में प्रचार करते हुए और उस कलवरी के उस अनुभव के बारे में प्रचार करते थे। That pastor so said like this, so the people after hearing the preaching of compassion will not come unto me. They all will go to us. They all will go to Christ. They will follow Christ. They will never afterwards follow me. वो पास्टर जी इस रीति से कहते हैं कि इस वचन को मैं इस रीति से इसलिए बोलता हूँ ताकि उस परमेश्वर की दया को सुनने के बाद लोग मेरे पीछे ना आते हुए यीशु मसीह का पीछे अनुकरण करें, यीशु मसीह के क्रूस के पास जाएं और यीशु मसीह का पीछा करें। Beloved child of God, this day I want to tell that advice unto you. Don't go to any other person in this world for anything. Come unto Christ. He is full of compassion, full of helping mentality, full of helping power, standing for you, stretching out his hand. Come and tell your matter. Right now, miracle is going to happen in your life.
परमेश्वर के प्यारे बच्चों, मैं आज सुबह के समय आपको देने वाला सलाह यह है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान के लिए किसी भी मनुष्य के पास इस दुनिया में ना जाए, यीशु मसीह के पास आए। वो अपने दया को आपके ऊपर दिखाएगा, वो आपको सहायता करेगा। वो अपने हाथों को फैला के आपको बुला के कहता है कि अपनी समस्याओं को लेकर मेरे निकट आओ। If you are thrown under water by your enemies like Moses, you will be delivered by God. And if you are thrown in the midst of fire, Shadrach, Meshach, Abednego, you will be preserved by sending God's Holy Spirit from heaven. मूसा के समान यदि आप अपने शत्रुओं के द्वारा पानी में डाल दिए गए हो तो परमेश्वर आपको बचाएगा। और अगर आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान आग में डाल दिए गए हो तो परमेश्वर अपने प्रतिरूप को बेचते हुए आपको उस आग के बीच में भी रक्षा करेगा। Many places God sending His angels to help many people. बहुत सी जगहों में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को बेच के लोगों की सहायता को किया है। From Genesis to Revelation we can see the ministry of the angels sent by God to help many people. उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम स्वर्गदूतों की सेवाओं को देखते हैं, किस रीति से परमेश्वर ने उन्हें भेजा ताकि वो लोगों की सहायता करने पाए। They helped a lot for many people of God and others also. परमेश्वर के लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत सहायता की। But here it is not so. We need compassion. Angel could not show compassion towards anybody. Our Jesus only can give the help along with the compassion. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हमें वो दया की जरूरत है। स्वर्गदूत हमें दया नहीं दिखा सकते, केवल यीशु मसीह हमें वो दया दिखा सकता है और उसके द्वारा वो हमारी सहायता भी कर सकता है। Let me take one verse how God, Jesus helps and Holy Spirit helps. कैसे यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमें सहायता करते हैं, मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Hebrew chapter 2 verse 16. इब्रानियों 2 अध्याय का 16 वचन। Please read. क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। Hebrew 2:16. For verily took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. इब्रानियों 2 अध्याय का 16 वचन, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। God himself gave his hand as a helping hand unto the Abraham's descendants or Abraham's son. परमेश्वर ने खुद अब्राहम के वंश को अपना हाथ बढ़ा के सहायता की करके हम इस वचन में पढ़ते हैं। God showed visible hand and invisible hand to help in various circumstances. अलग अलग परिस्थितियों के बीच में प्रभु ने अपने अदृश्य हाथ को और दृश्य हाथ को दिखाते हुए उनकी सहायता की। When angels fell, God did not give hand to restore them, but when men fell, God stretched out his hand to restore them. जब स्वर्गदूत गिरे तब परमेश्वर ने अपना हाथ को बढ़ा के उन्हें सहायता नहीं की, लेकिन जब मनुष्य गिरा तब परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ा के उस मनुष्य को सहायता की। That hand is being stretched forward this time to help you because he is full of compassion. वो हाथ आज भी परमेश्वर आपके लिए बढ़ाता है क्योंकि वो दया से परिपूर्ण है। To bring up the place where you are now. आप जिस स्थान पे हो उस स्थान पे आपको वापस ले आने के लिए। To bring out the place in which pit, which problem, which trouble you are being nowadays. इन दिनों में आप रहने वाली समस्याओं के बीच में, इन दिनों में आप रहने वाले उस गड्ढे के बीच में, उन सारी परिस्थितियों के बीच में से आपको निकाल लेने के लिए। We are the Abraham's descendants. हम अब्राहम के वंश हैं। Not only we will be given blessings because we are the descendants of Abraham, in which problem we are being involved, God is ready to take us out by stretching out his helping hand. क्योंकि केवल हम अब्राहम के वंश है इसलिए उस आशीष को नहीं पाएंगे, फिर भी उसके द्वारा परमेश्वर अपना हाथ को बढ़ा के और हमारे पर दया करते हुए हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। Because he is a compassionate God. क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। 18th verse says to 18 of Hebrews. इब्रानियों 2 अध्याय का 18 वचन इस रीति से कहता है, Jesus is able to help those who are being tempted. जो परीक्षा में जाते हैं यीशु मसीह उनकी सहायता करने के लिए तैयार है। We have the helping of God, we have the helping of Jesus, we have the helping of angels, we have the helping of
even Holy Spirit and many others also. हमारे पास परमेश्वर की सहायता है, हमारे पास यीशु की सहायता है, हमारे पास पवित्र आत्मा की सहायता है और साथ ही साथ हमारे दूसरी और भी कई सहायताएं हैं। While Christ was walking in the water, जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे and Peter also has permission to come unto Christ walking on the water. जब पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि क्या वो भी पानी के ऊपर चले, And Jesus gave the permission and started to walk on the water to come unto Christ. जब यीशु मसीह ने अनुमति दिया और तो पतरस पानी के ऊपर चलना आरंभ किया। But while he was coming towards Jesus, he started to look at somewhere else and he started to drown in the water. लेकिन जब वो पानी के ऊपर चल रहा था तो यीशु मसीह को छोड़ के उसने अपनी दृष्टि, उसने अपनी नजर यहाँ वहाँ लगाई और वो साथ में पानी में डूबने लगा। Christ stretched out his hand and took him out of the water. यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया और उसे पानी में से निकाला। He called only one thing unto Christ, Jesus, help me, save me. पतरस ने एक ही एक बात यीशु से कहा, हे यीशु मेरी सहायता कर। At once Christ saved him. एकदम यीशु मसीह ने उसकी सहायता की। Within no time Christ saved him. उसी समय यीशु मसीह ने उसकी सहायता की। Within no time. उसी समय परमेश्वर ने उसकी, यीशु मसीह ने उसकी सहायता की। Tell you, we all called Christ. So have compassion on us or have compassion on me and help me. आइए हम भी परमेश्वर के सामने ऐसा दुहाई देंगे, यीशु मसीह मुझे सहायता कर, यीशु मसीह मेरी मदद कर। You are singing, going down in any area or in your spiritual life or in your something else, going down, soon you are going to immerse, going to die, things going like that. You know, this is the best time to you to call upon God, Lord, show compassion and mercy upon me. अगर आप अपने जीवन में किसी भी रीति से डूब रहे हो, चाहे वो आपके व्यापार के बीच में हो, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में हो, चाहे आपकी समस्याओं के बीच में हो, आज सुबह के समय आप यीशु मसीह को पुकारे और उससे सहायता के हाथ को मांगे। वो अपने हाथ को बढ़ा के आपको सहायता करेगा और उस डूबने की अवस्था से आपको निकालेगा। When that child was brought unto Christ, जब वो बालक को यीशु मसीह के पास लेके आए, again that evil spirit troubled him and he fell on the ground. तब उस दुष्ट आत्मा ने उसे कष्ट दिया और वो बालक जमीन पर गिर गया। 27th verse says that Jesus took him by the hand and lifted him up and he arose. 27 वचन में इस रीति से लिखा है कि यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। You are ready to fall or you might have fallen in various aspects in your spiritual life or in your family life or in your working spot or something like that. Call upon Christ. He is going to lift you up so that you can arise without any such evil spirit and go forward. आपके आत्मिक जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में और आपके कई समस्याओं, परिस्थितियों के बीच में आप गिरी हुई अवस्था में या गिरने वाली अवस्था में आप दिखाई देते होंगे, लेकिन आज यीशु मसीह को देख के आप पुकारे, तब यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ा के आपको उठाएगा, आपको खड़ा करेगा और इस डूबने की अवस्था से बाहर निकालेगा। And the Holy Spirit also is helping us while we are praying. Romans 8:16. रोमियो 8 अध्याय का 16 वचन के अनुसार, और जब जैसा हम प्रार्थना करते हैं तब पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता करता है। Because while we are sitting down, we do not know how to pray, how to cry, how to call God, how to tell unto Him thing. But Holy Spirit is helping us in that time also. हम डूबने के समय में किस रीति से यीशु मसीह को पुकारना है, किस रीति से प्रार्थना करना है, ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और हमें यीशु को पुकारने में हमारी मदद करता है। Your problem have not been solved so far because you did not know how to tell that matter, how to bring that matter unto compassionate and helping Christ. आपकी समस्या का समाधान अभी तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप ये नहीं जानते कि यीशु मसीह को किस रीति से पुकारना है। You might have prayed or cried or fasted many days, 40 days more than that also. आप रोए होंगे, आपने उपवास लिया होगा, आपने प्रार्थना किया होगा, आप 40 दिन से भी ज्यादा उपवास लेके इस विषय लिए प्रार्थना किए होंगे। But this is the prayer point. Holy Spirit is telling you this day. You open your mouth and tell, have compassion on me or have compassion on my family and help our family or help me.
लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको ये बात की सलाह देता है कि आप अपने मुंह को खोल के इस रीति से प्रार्थना करें कि यीशु हमारे ऊपर तरस खा, यीशु हमारी सहायता कर, यीशु मेरे परिवार की सहायता कर, यीशु मेरे परिवार के ऊपर तरस खा। Yes, I am going to pray in that manner. How many of you decided so? Lift up your hand and shout and hallelujah. हाँ, मैं इस रीति से प्रार्थना करूंगा। जितने लोग इस बात को कहते हैं अपने हाथ को खड़ा करके हालेलुया बोले। हालेलुया। No need to do great thing, taking fast or going there and here and attending this convention and that convention and doing many things for the Lord. Just a prayer. You pray like that. That sinner prayed like that at once. Within no time, the solution will come unto you. आप कोई भी बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ वहाँ जाके उपवास लेके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आप इस सम्मेलन में किसी भी सम्मेलन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन के आपको सहायता करेगा और आपके ऊपर दया करेगा। Psalm 78 verse 38 say 78 78 भजन संहिता का 38 वचन इस रीति से कहता है 38 परंतु वो जो दयालु है वो उनके अधर्म को डांपता और उससे नष्ट नहीं करता। Enough. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Full of compassion, forgive their iniquity. दया से परिपूर्ण होके उनके सारे अधर्मों को क्षमा किया। Full of compassion, forgive their sin and destroyed them not. दया से परिपूर्ण होकर उनके सारे पापों को क्षमा किया और उन्हें नाश नहीं होने दिया। This day you call upon God for compassion and help. He will forgive all your sin, all your iniquity, and heal all your sicknesses so that you may be escaped out of destruction. आज परमेश्वर की उस दया के लिए और उसकी सहायता के लिए आप परमेश्वर को पुकारे तो वो परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, आपके ऊपर तरस खा के आपके सारे पापों को क्षमा करेगा और उस नाश होने वाली वस्तुओं से परमेश्वर आपको निकालेगा। Forgiveness is you are receiving from God because of His compassion and helping in the beginning, and go on receiving compassion and help at the coming of the Lord also. You could be translated by His compassion, and you will be hold up by the hand of God and taken to heaven also. आपके जीवन के आरंभ से लेके आप परमेश्वर की दया को प्राप्त करते हुए आप परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया, आपको उतार दिया और यही दया परमेश्वर आपको आपके परमेश्वर की आमद तक आपको लेके जाएगा और उसी दया के साथ परमेश्वर आपको रूपांतर करेगा और अपने हाथ को बढ़ा के आपको स्वर्ग ले जाएगा। Don't think that for one incident or one day only God will show compassion and He will give you helping. He will show that till the end, till you attain your destination, Zion and New Jerusalem. आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर केवल आपको एक ही अवसर पर दया दिखाएगा और एक ही बार आपके ऊपर दया दिखाएगा। जब तक आप अपनी मंजिल तक सियोन यरूशलेम तक ना पहुंच जाए तब तक यीशु मसीह अपनी दया आपके ऊपर दिखाएगा। Could you show a person in this world who is ready to show both compassion and help to you or to your family? क्या इस संसार के बीच में कोई आप ऐसा व्यक्ति दिखा सकते हैं जो आपको और आपके परिवार को दया दिखाने के लिए और सहायता करने के लिए तैयार है? You cannot see such a person among your relatives or among politicians or any other people in this world. आप इस संसार के बीच में ना तो आपके रिश्तेदारों के बीच में ना तो नेताओं के बीच में और कोई भी किसी भी रीति के इंसानों की श्रेणी के बीच में आप ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाओगे जो आपको सहायता करे। But to show compassion and to help you from all the aspects of your life, Christ standing here, why not you miss this chance? Shall we all start to pray within our heart, Lord, if this verse is given to me, start to show compassion and help unto me and my family. आज यीशु मसीह हमारे पर दया दिखाने के लिए हमारी सहायता करने के लिए आज हमारे बीच में खड़ा है। आइए हमारे शब्द को ऊंचा करते हुए हमारे मन के बीच में प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे पर दया कर और हमें सहायता करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा। Very easy to pray wherever you are, by your heart, by your mind, by your mouth. You can pray this small prayer that will bring a great, best, blessed, miraculous answer unto you.
आप कहीं भी होने से, आप कहीं भी बैठे होने से, अपने हृदय के द्वारा, अपने मन के द्वारा, आपके भीतरी मनुष्य के द्वारा आप इस रीति का एक छोटा सा प्रार्थना करें, तब परमेश्वर अद्भुत रीति से, आश्चर्य रीति से आपके जीवन में काम करेगा और आपको सहायता करेगा। We read about a king Uzziah in 2 Chronicles 26 verse 15. दूसरे इतिहास 15 अध्याय का 26 वचन में हम एक राजा के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम उज्जियाह है। Many in this world were helped by God, इस संसार में रहने वाले कई राजाओं को परमेश्वर ने सहायता की, but this king only received marvelous help from God. लेकिन इस उज्जियाह राजा ने परमेश्वर से एक अद्भुत रीति से, आश्चर्य रीति से एक सहायता को प्राप्त किया। It is said he was marvelously helped till he became great. इस रीति से लिखा है कि वो प्रसिद्ध होने तक या महान बनने तक परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसकी सहायता की। We are also kings by the anointing of the Holy Ghost. हम भी पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा राजा ठहरे हैं। If you ask God His compassion, you are going to be marvelously helped from today onwards. अगर आज आप परमेश्वर की सहायता को, परमेश्वर की दया को परमेश्वर से मांगते हैं, तो जब प्रभु आपके ऊपर दया करेगा तो आप उसकी सहायता को प्राप्त करते हुए इस दुनिया में बड़े महान व्यक्ति बन जाएंगे। If man does a small help, he will remain that all the days of his life, and he expects something from us also. जब एक मनुष्य हमारी सहायता करता है, छोटी सहायता भी करता है, तो हम पूरी उम्र उसको याद रखते हैं और वो मनुष्य हमसे भी कुछ ऐसा ही एक छोटी सहायता को, मदद को चाहता है, अपेक्षा करता है। But God is giving all these things without expecting anything from us, because that is the character of God. Compassion is the character of God. Helping is the character of God. लेकिन परमेश्वर इन सारी बातों को, सारी आशीषों को हमें देने के लिए और हमसे ना कुछ अपेक्षा करते हुए, परमेश्वर कभी भी हमसे कुछ नहीं चाहता, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर, दया से परिपूर्ण परमेश्वर है और ये उसका स्वभाव भी है। You might have tried through many process for the solution of your problem or your spiritual life. Leave everything right now. Please do this. Open your mouth and say, Lord, have compassion on me and help me. Lord is surely going to do this day unto you. अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए, अपने आत्मिक जीवन में रहने वाले उस कष्टों का हल पाने के लिए आपने कई रीति से प्रार्थनाएं की होंगी, लेकिन उन सारी बातों को छोड़ के आज सुबह के समय एक छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर और मेरी सहायता कर। How many of you are getting ready to receive compassion and help from God and depart from here? परमेश्वर से दया को प्राप्त करते हुए, उसकी सहायता को प्राप्त करके कितना लोग इस स्थान से जाना चाहते हैं। Not only your sickness being healed or problem solved, all the days of your life, Jesus will be very care to show compassion and help till you attain your eternal abode. आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाओगे, आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाओगे, आप अपने कष्टों से छुटकारा पाओगे। उतना ही नहीं, पूरी उम्र तक, आपके जीवन के अंत तक परमेश्वर की दया और परमेश्वर की सहायता आपके जीवन में लगातार बनी रहेगी। And in the Bible only one thing that is see unto our God. 2 Chronicles chapter 14 verse 11. दूसरा इतिहास 14 अध्याय का 11 वचन। Lord, it is very easy to you help the weak or to help the strong. Or Lord, it is very easy to you to help a small group or bigger group. हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी कर। हे हमारे यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Personally, or your family wise, or in your church, or in your business company, or in any problem, for God, it is very easy thing is to show compassion and help you and me. आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके काम की जगह में, किसी भी जगह में परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखाने के लिए, यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए बहुत छोटी बात है। For us it is very hard, but Bible says, I am the God of all flesh. Is anything too hard for me?
हमारे लिए वो काम बहुत कठिन और मुश्किल हो सकता है, लेकिन वचन इस रीति से कहता है कि परमेश्वर सारे प्राणियों का परमेश्वर है, क्या उसके लिए कोई बात कठिन है? May in need of money or job or peace or rest or joy, anything, child of God, within this compassion and help of God, all things are included. आपको पैसे की ज़रूरत होगी, आपको नौकरी की ज़रूरत होगी, आपको समाधान की ज़रूरत होगी, आपको शांति की ज़रूरत होगी, विश्राम की ज़रूरत होगी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर की इस दया में और इसकी सहायता में सब कुछ पूरा होता है। You might be anybody, any person, good or bad, better or best, that is not at all a problem. You need the compassion of God, helping of God. आप चाहे कोई भी हो सकते हैं, बुरे व्यक्ति हो सकते हैं, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, छोटे व्यक्ति हो सकते हैं, आप सभी के जीवन में ये परमेश्वर की दया और परमेश्वर की सहायता जरूरी है। Psalmist is telling in Psalm 121 verse 1. भजन लिखने वाला भजन संहिता 121 के पहले वचन में इस रीति से कहता है, I lift up my eyes from where my help cometh above. मैं अपनी आंखों को ऊपर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? He said that I will lift up my eyes, head, or my heart, or my voice, or everything towards rock which is above right now. अभी ऊपर रहने वाली उस चट्टान की ओर या पर्वतों की ओर मैं मेरे आंखों को, मेरे सर को उठाऊंगा, मेरे हृदय को उठाऊंगा, मेरी आवाज को उठाऊंगा, वो कहता है। Child of God, right now we all are going hand and lift up our voice, lift up our heart, lift up our mind, lift up our head towards heaven, lift up our eyes towards heaven, from where right now the compassion and help is coming. परमेश्वर के बच्चों, अभी हम सब खड़े होके अपने हृदय को, अपनी आंखों को, अपने मन को, अपने सिर को, अपनी आवाज को स्वर्ग की ओर उठाएंगे जहां यीशु मसीह विराजमान है। Many times I tried, many times I prayed, many times I cried. Now also it would be also like that. Don't think like that. आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने बहुत बार प्रार्थना की और मैं बहुत बार रोया और अभी भी इसी रीति से होगा करके आप मत सोचिए। Right now you have come over here not because of you or not by inadvertently, but because of many people's prayers in this world and the compassion and help of God to give you compassion and help this day. अभी भी इस समय में आप अपनी मर्जी से या आपके चाहने से आप इस स्थान पे नहीं आए हो। इस संसार में कई लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा आज आप इस स्थान पे एकत्रित हुए हो ताकि परमेश्वर की दया और परमेश्वर की सहायता आपके जीवन में दिखाई दे। Crores of people are in this world. They had not been brought to this place, but because of many people's prayer and saints, many saint prayer, you have been come over here. This day, miraculous thing is going to happen to you and your family. इस संसार के बीच में करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो लोग इस स्थान पे नहीं लाए गए। आप संतों की प्रार्थनाओं के द्वारा, दूसरे लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आपको इस स्थान पे लेके आया है ताकि वो अपनी दया आपके ऊपर दिखाए और आपकी सहायता करे और आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कामों को वो करे। Psalm 46 verse 1 says that our God is the help at the time of trouble, present help at the time of trouble. 46 भजन संहिता का पहला वचन ये कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारी सहायता है और संकट में मिलने वाला अति सहज से मिलने वाला सहायक। Present help. संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायता। Not later, not tomorrow, not after some days, right now. कुछ समय बाद नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अब भी। If you are a student going to face examination, you pray, Lord, show compassion and help in that day. अगर आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं और आप एग्जाम्स देने वाले हैं या परीक्षा देने वाले हैं तो परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरी आप सहायता करें। If you are a man of sickness or weakness or anything, call upon God, compassion and help will come upon you. आप बीमार हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, आपके जीवन में कुछ भी समस्या हो सकते हैं, आप भी परमेश्वर को देख के पुकारे और कहें परमेश्वर अपनी दया और अपनी सहायता मुझे दिखा। Don't look at here or there or hither or this side or that side for compassion or help. Look up the God who is ready to give you compassion and help right now.
दया को पाने के लिए, सहायता को पाने के लिए यहाँ वहाँ उधर इधर मत देखिए, केवल अपनी नज़रों को उठाते हुए, अपने सर को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तेरी दया को और तेरी सहायता को मुझे दिखा। How many of you are ready to pray in this manner and receive solution, joy and peace and rest and healing and everything and go from here right now? कितने लोग इस रीति से परमेश्वर को पुकारने के लिए तैयार हैं और आपके जीवन में छुटकारे को, चंगाई को, शांति को, विश्राम को और इन सारी चीज़ों को पाने के लिए तैयार हैं? If you are in want of compassion and help, stand up and lift up your head and open your mouth and call upon God. अगर आपको ये दया की आवश्यकता है, यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो आप खड़े हो जाएं और अपनी आवाज़ को उठाएं, अपने हृदय को उठाएं, अपनी आंखों को उठाएं, परमेश्वर को पुकारें। If you understand this word of God, right now you can open your mouth and call upon God and receive the compassion and help and go from here. अगर आप इस वचन को समझ पा रहे हो तो आप अभी खड़े हो जाएं और अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए परमेश्वर को पुकारें और उसकी सहायता को और उसकी दया को प्राप्त करें। This is completely free, total free, all the days free. You can receive freely and go from here. ये सब कुछ सेत में तो आपको दिया गया है, मुफ्त के दिया गया है, बिना दाम के दिया गया, और आपके जीवन के पूरे समय परमेश्वर आपको ये सब कुछ सेत में देता है। No need to think there is nobody in this world to show compassion or help for me. Right now, you open your mouth, call upon God. मेरे पर दया करने वाला और मेरी सहायता करने वाला इस संसार में कोई नहीं, आप ऐसा ना सोचे। आप इसी समय परमेश्वर को देख के पुकारें। God is not looking at your worthiness to show compassion and help towards you. प्रभु आपको सहायता करने के लिए और आपके ऊपर दया दिखाने के लिए आपकी योग्यता को नहीं देखता। You have to open your mouth and pray, Lord, have compassion on me. आपको अपने मुंह को खोल के इस रीति से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। Children, youth, brothers and sisters, loudly open your mouth and call upon God for compassion. बच्चे, जवान लोग, बड़े लोग, सब लोग अपने मुंह को खोल के अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए परमेश्वर से परमेश्वर की दया को और उसकी सहायता को मांगे। Only few minutes we have. थोड़ा ही समय है हमारे पास। By this time we can receive a long-term problem solution. इस थोड़े समय के बीच में हमारी सारी लंबे समय से चलते आए सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Don't doubt. संदेह ना करें। Don't disbelieve God. आप परमेश्वर के पर अविश्वास को ना दिखाएं। This word is for you. ये वचन आपके लिए है। This compassion is for you. ये दया आपके लिए है। This compassionate Christ is for you. ये दयालु यीशु आपके लिए है। Let this compassion may come into your family through you. आपके द्वारा ये दया आपके परिवार के ऊपर भी आने दे। Lift up your voice louder. आपकी आवाज को ऊंचा उठाए। Let it enter into the kingdom of God. इसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने दे। Let your voice enter into the ears of God. आपकी आवाज परमेश्वर के कानों में गूंजने दे। Let its voice enter into the most holy place. आपकी आवाज वो अति पवित्र स्थान में जाने दे। Let it enter in the holy temple of God. परमेश्वर के उस पवित्र मंदिर में आपकी आवाज जाने दे। Open your mouth. अपने मुंह को खोले। Open your mouth wide. अपने मुंह को और भी पसारे। Now miracle is coming upon you. और आप अभी आपके ऊपर एक आश्चर्य काम होने वाला है। Compassion is coming upon you. आपके ऊपर दया आ रही है। Lord's helping hand is stretched towards you. परमेश्वर का सहायता करने वाला हाथ आपकी ओर बढ़ाया है। Compassionate God is standing by you. दयालु परमेश्वर आपके निकट खड़ा है। You are being healed. You are touched. आप छुए गए हैं। You are being strengthened. आप बलवंत किए गए हैं। Lord is speaking to you. परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। Lord is encouraging you. प्रभु आपको धैर्य कर रहा है। Don't stop your crying. आपकी पुकार को ना रोके। Only few minutes. और थोड़ा समय। Everyone. सब लोग Loudly. जोर से। Lord, compassion. परमेश्वर दया दिखाओ।
Oh, Ribakara Baushida Katu.